हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा डॉकर के बारे में, क्यूबरनेटिस के बारे में और डॉकर कंसिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस। डॉकर के साथ एप्लीकेशंस जो रहेगा वो मैं EC2 इंस्टेंसेस पे रन करूंगा। डॉकर के एप्लीकेशन डॉकर्स कंसिस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन which will be running in the EC2 instances, and also I will try to, if getting a time, so I will show you the Kubernetes files, like how the Kubernetes will work. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग means like the most interesting fact is I'm going to use over here the GitHub Actions. The people's the people, I don't know the concept of GitHub Actions. They know or doesn't know, but they need to know that GitHub Actions is very much helpful with the developers. They have to commit the code and just forget about everything. Yeah, so the developer perspective point of view is very fine. It's like, yeah, we have to use the GitHub Actions, but the thing is, if you need to understand about the how in the background the DevOps guys, how they do the configurations and all, to do the clusterings, roles management, they do the VPC connections. So a lot of things, subnet masking, subnets kind of IP, providing IP and also traffic management. So it's all depends on how they are how they are managing in the background, and the developer doesn't know it, right? So I will going to show you from the both perspective, because this is a part of going to cover the architecture completely. And without this one, I don't think so a proper developer or like architect uh, knows the exact things what's going on in the background. So I will show you today the exact how the applications reside in the Docker, and it's going to deploy in the AWS EC2 instances with the running state. uh, okay, so let me show you one more thing. So the interesting fact is, I'm going to show you that through the GitHub Actions. Okay, so watch it carefully. This 20 minutes or 30 minutes, whatever, it should be very important for you guys. Okay, so let's start now. Let me say, yeah, I think so. The screen is already shared. So if you see the GitHub repo, which I have already created, I'm going to explain you the things first of all, you have a Microsoft applications already. If you have, so whatever the applications, whatever the endpoints which you have already created it, you have to run it. That's it. You have to run it. So it should be in a running state, and once the jar is created, like successful build and all, so just make sure your GitHub repo is perfect, working perfectly fine. Okay, so I have already created a structure for me, the GitHub this GitHub architectures lab, the applications which I have developed it. So if you see the repository, so the applications are already there with the name of Spring Boot Architecture Lab. So what I will do, this microservice application jar will going to deploy onto the EC2 instances, which will be in the resides in the Docker. Okay, so and the code will going to commit it from the GitHub Actions, and it will going to directly show the images into the means like so the images into the particular clusters, whatever the cluster I'm going to create it, right? It will show over there, and it's going to be the running instances will show you the Docker is running or not with that particular instances, and thereafter I will going to run our applications. Okay, I mean, it's we can see in the with the IP, or we can connect our the REST endpoints, whichever it is. Okay, in the microservices. So let me open the repo now. I will use Hindi and English for more comfortable guys. So people sometimes tell that आप हिंदी में भी बात करो और इंग्लिश में भी, तो ठीक है मेरे हिसाब से मैं I will okay with any languages. So prefer to be. So let me explain you guys now. Okay. So let's start with the Docker. Okay. So I will show you what is Docker over here, Docker file. Okay. So what is you mean by Docker? So Docker is just like एक platform tools है जो हमें applications को कंटेनर में पैक करने के लिए देता है। और कंटेनर्स का मतलब क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है उसके सारे डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरी, कॉन्फ़िगरेशंस, एनवायरनमेंट सब एक छोटे से बॉक्स में बंद हो जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स यूज कर रहे हो, क्लाउड यूज कर रहे हो, क्लाउड यूज कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी कंसिडर इन सेम प्लेस, सेम तरीके से काम करेगा। इसलिए उसको
पैकेज करके रखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, उसको चलाने के लिए हम लोग जावा का सही वर्जन यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, डेटाबेस कनेक्शन का कोड लिखते हैं, कन्फिग्रेशन फाइल बनाते हैं। तो ये चीज़ें ऐप किसी डेवलपर को देगा, तो मान लीजिए ये ऐप किसी हम डेवलपर को देते हैं, तो वो बोले मेरे सिस्टम पर जावा का वर्जन अलग है, डेटाबेस नहीं चल रहा है, एरर आ रहा है। तो यही प्रॉब्लम है ना, डॉकर सॉल्व करता है। आप डॉकर में कंटेनर इमेज बनाते हो। डॉकर में एक डॉकर है, मतलब एक कंटेनर इमेज बनाते हैं, जैसे बाल्टी है, उसमें क्या हो रहा है, एक इमेज बना रहे हो, पानी मतलब एक ऐसा सरफेस बना रहे हो जहाँ पानी होगा। तो डॉकर क्या है कि कंटेनर इमेज है, एक ऐसा कंटेनर जहाँ पर इमेज बनता है, पानी की जगह पर समझो इमेज बनाते हैं, जिसमें अलग अलग इमेजेस होते हैं। और उस इमेजेस मतलब जार का इमेजेस, इमेज मतलब जार का इमेज, या आप जावा में बोल रहे हैं जार का इमेज, एंगुलर के लिए होगा एनजीएनएस का इमेज। तो जो भी है इमेज बना रहे हैं हम, उस इमेज क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है वो सब चीजें। तो जावा का तो अगर मान लीजिए किसी डेवलपर को हम ये देते हैं, मेरे सिस्टम पर जावा का वर्जन सही चल रहा है, डेटाबेस नहीं चल रहा है, और तो क्या है, तो आप क्या बोलोगे, उस कंडीशंस में आपको इशू आ सकता है। डॉकर इस चीजों को रिजॉल्व करता है। डॉकर बोलता है कि तुम कोई भी इन्वायरमेंट में चलाओ, हम तुम्हारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करेगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, कोई इन्वायरमेंट का कोई मिसमैच नहीं होगा। तो ये डॉकर आपको सॉल्व करता है। तो रियल लाइफ में अगर हम बात करें, तो मान लीजिए एग्जांपल, एक पिज्जा, मान लो आप पिज्जा बना रहे हो, ठीक है, और आपको रेसिपी पता है और आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ रेसिपी भेजेंगे किसी को, तो उसका क्या होगा, हर कोई अलग अलग टेस्ट का पिज्जा बनाएगा, राइट। तो किसी के पास चीज नहीं है, तो किसी का जो ओवन का टेम्परेचर अलग बढ़ा दिया गया था, तो टेस्ट का अलग होगा कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास पिज्जा का एक बॉक्स ही जैसे पैक करके सबको भेज देते हो आप, रेसिपी उसी रेसिपी के हिसाब से, तो हर जगह उसका सेम टेस्ट मिलेगा, राइट। तो डॉकर भी वही काम करता है, आपकी एप्लीकेशंस को एक बॉक्स कंटेनर में पैक करके हर जगह सेम रिजल्ट देता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, कहीं भी कोई भी इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो एग्जांपल हम अगर हम बात करें, जो हम फाइल आपको शेयर किए हुए हैं डॉकर फाइल का, अभी इसी चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर है क्या ये। ठीक है। और ये सब चीजें जानने की जरूरत भी है, क्योंकि कमांड्स, देखिए बहुत सारे कमांड्स होंगे डॉकर्स के। डॉकर क्रिएट, डॉकर इमेजेस, जैसे कि डॉकर का क्या होता है, जैसे डॉकर का बहुत सारा लाइक क्रिएट इमेजेस बनाते हैं, और डॉकर इमेजेस लिखते हैं तो उसके इमेजेस की लिस्ट आता है। तो वो सब कमांड्स आप देख लो कैसे करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप जब भी एप्लीकेशन बनाओ तो उसका वॉल्यूम भी बनाओ, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन रन कर रहा हो तो आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन आ सकता है, एक जगह लेता है डॉकर, मतलब एक बाल्टी की तरह पानी एक जगह ले रहा है, राइट। उस इमेज को रखने के लिए उसका जगह होना चाहिए, नहीं तो डॉकर एक वोलेटाइल नेचर का है, वो चला जाएगा। और इमेज को भी टैगिंग टैगिंग करके रखिए ना, तो डैंगलिंग इमेजेस, जो डैंगलिंग होता है, वो ऐसा इमेज बनेगा, उसका कोई रीयूज नहीं होगा, तो फिर वो आपको फालतू का इमेज लाइक काइंड ऑफ स्टोरेज, इट विल क्रिएट अनबर्डन मेमोरी ऑफ स्टोरेज, राइट। सो डैंगलिंग इमेजेस को हटा दो आप, बेटर टू बी ओके। सो अभी एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ इस कमांड्स के बारे में, जैसे एक पहला ये लाइन बोल रहा है कि यूज बेस इमेज विद जेटीके, जो भी बोल रहा है कि फ्रॉम इक्लिप्स टर्मिनल, जो भी हम डालें 17, ये बोलता है कि ये कंटेनर किस बेस इमेज से बनेगा। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो जावा 17 जेडीके वाला लिनक्स इमेज है, ठीक है। तो मतलब कंटेनर में पहले से ही जावा रन टाइम मौजूद होगा, ताकि हमारा जो भी एप्लीकेशन जा रहा है, स्प्रिंग बोट का जा रहा है, वो रन कर सके। समझ रहे हैं ना, कि आपका जावा 17 वाला लिनक्स इमेज आपको ये ला के देगा कंटेनर्स, पहले से ही बता के इन्होंने दिया कि लेकर के आओ कहाँ से, इक्लिप्स टर्मिनल ये लेकर के आओ अपने डॉकर के रजिस्ट्री से, और लेकर के आओ और ये इन्वायरमेंट बना दो, ताकि हमारा स्प्रिंग बोट जा रहा है उस पर रन कर सके। दूसरा लाइन है, अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डीआर, जो आप देख रहे हो, ये वर्क डीआर कंटेनर के अंदर का डिफॉल्ट डायरेक्टरी सेट होता है, सेट करता है एक्जैक्टली, यानी ऐप फोल्डर बनेगा और उसके आगे के सारे कमांड जो है इसी फोल्डर में एग्जीक्यूट होगा। मतलब कोड और फाइल एक जगह ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन जो देख रहे हो, कॉपी टारगेट, जो हम हमारा जो जार का लोकेशन है जहाँ पर ये एप्लीकेशन बन रहा है, तो उसका मतलब क्या आता है कि होस्ट मशीन जहाँ पर डॉकर फाइल है, से कंटेनर को कॉपी करना है, मतलब जितना भी तुम्हारा होस्ट, जहाँ से डॉकर फाइल है ना सारा, उसको कंटेनर में कॉपी कर लो। ठीक है। जैसे हमारा टारगेट जो जार है, ठीक है, उसको कंटेनर के ऐप फोल्डर में नाम से डाल दो। ठीक है। ऐप नाम से, जो आर्किटेक्चर लैब जो स्नैपडॉट जो जार है, उसको ऐप डॉट जार नाम से डाल दो। ठीक है। ये हमारी कंपाइल स्प्रिंग बूट को कंटेनर में लाने के लिए ही यूज करते हैं अधिकतर। एक्सपोज का मतलब क्या होता है, एटीएटी मतलब कंटेनर को आप पोर्ट डिक्लेयर करना होता है, कि जिस पर आप पोर्ट सुन रहा होगा। तो बाई डिफॉल्ट लिख एटीटी होता है, जब कंटेनर रन होगा तो हम इस पोस्ट से पोर्ट को मैप करके एक्सेस कर सकते हैं एक्चुअली इसे ऐप्स। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मैप डेटा, जो हम ये कंटेनर के अंदर का एक डायरेक्टरी को जो परसिस्टेंट स्टोरेज में बना ही देता है, जैसे कि हमें परमानेंट स्टोरेज करना है,
तो उसके लिए हम लोग एक डायरेक्टरी का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ऐप डेटा, जो भी एक फोल्डर है जहाँ पर आपका डेटा वहाँ पर स्टोर होगा। वो कंटेनर डिलीट होने पर भी बचा रहेगा डेटा आपका। तो जैसे एग्जांपल हम बात करें किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, अगर एप्लीकेशन हैवी मेमोरी का है, लॉग्स का है, फाइल्स का है, तो सब चीज़ सुरक्षित रखने के लिए अगर लॉग्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लॉग्स फाइल्स जो भी डेटाबेस है, तो वो स्टोर हो इस लोकेशन पे ऐप डेटा के फोल्डर पे जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट आप देखते होंगे हर समय डॉकर फाइल में एंट्री पॉइंट लिखा रहता है, जावा माइनस जार ऐप डॉट जार। तो कंटेनर स्टार्ट होता ही है इस कमांड से। कंटेनर जो होता है कौन से कमांड से चलेगा, ये सब ये डिफाइन करता है कंटेनर। ये जो एंट्री पॉइंट है ये बताता है कि कंटेनर कौन से कमांड से चलेगा या डिफाइन करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जावा माइनस जार ऐप डॉट जार, यहाँ पर रन होगा क्या कि कंटेनर लॉन्च होता है, कि आप जैसे ही ये कमांड को डालते हो कि जावा माइनस जार, जो भी जार फाइल है वो जावा के माइनस जार, मतलब जैसे ही आप ये कमांड यूज करते हो तो जो हमारा ऐप डॉट जार बन रहा है, ठीक है, ऊपर, उसको उस जार को आप कमांड से ट्रिगर करो और रन कराओ। तो इस क्या होगा कि आपका कंटेनर स्टार्ट होते ही ये कमांड चलेगा एंट्री पॉइंट से। जावा वर्जन में आप इस जावा कमांड यूज कर रहे हो, पूरा एक कमांड है, जावा स्पेस माइनस जार माइनस ऐप डॉट जार, ये पूरा एप्लीकेशन ऐप डॉट जार एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा समरी यही रहा कि इसमें इंफॉर्मेशन की इस कमांड का पूरा फाइल का, डॉकर कमांड का फाइल का यूज आपको करना है, ताकि एक आपको बेस इमेजेस लेते हुए जावा 17 का, और क्या बोलते हैं उसको, एक आप फोल्डर बना देगा डायरेक्टरी ऐप में, जहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशंस रहेंगे फोल्डर के। वॉल्यूम भी स्टोर उधर डेटा फोल्डर के अंदर में होगा, पोर्ट एटीटी पे स्टोर होगा, और इसके एंट्री पॉइंट विद जावा एग्जीक्यूट होगा। तो ये फाइल आप हम जावा के लिए बना रहे हैं। इसी तरह एंगुलर पे भी बना सकते हो आप। इसका देख लो कंपैरिजन क्या होता है एंगुलर के लिए, रिएक्ट के लिए, तो उसके हिसाब से आप फाइल बना सकते हो। इसको क्लास पाथ पे मैंने रखा है, ठीक है, क्लास पाथ पे रखा है। नेक्स्ट आप डॉकर फाइल जब आप ये बनाते हो तो उसका जेंकिन्स फाइल भी यूज करना होगा, मतलब बिल्ड करने के लिए, राइट, पाइपलाइन के थ्रू। तो इसके स्टेजेस होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, आप ई लाइन देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जेंकिन्स होता क्या है। जेंकिन्स जैसे कि एक एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा बोल सकते हैं पाइपलाइन, हाँ, मतलब एक छोटे छोटे हिस्सों में आपको हर चीज को लेके चलता है, मतलब वो एग्जाम्पल आपको अगर मान लीजिए पुणे टू गोवा जाना है, पुणे टू गोवा, तो लेकिन हर एक स्टेप में से आप क्रॉस करोगे ना, राइट। फ्लाइट एग्जांपल मैं ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा। फ्लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, वो डायरेक्टली चला जाएगा, मतलब फ्लाइट डिपेंड। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ कि एक ऐसा स्टेप एग्जांपल तौर पे कि हर एक स्टेप से गुजरता है, हर एक चेक से। तो ये भी एक तरह से पाइपलाइन है जहाँ पर हर चीज को स्टेजिंग बाइट में बांटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या है, ये जेंकिन्स फाइल, ये एक डिक्लेरेटिव पाइपलाइन होता है जो कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, डॉकर इमेजेस को बनाता है, उसे ईसीआर पे पुश करता है। ईसीआर क्या, कंटेनर रजिस्ट्री पर पुश पुश करता है, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री पे पुश करता है, और फिर EC2 पे डिप्लॉय करता है, इंस्टेंसेस पे डिप्लॉय करना होता है। इसलिए हम लोग इसका हर स्टेज को लाइन बाय लाइन समझेंगे यहाँ पर। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें यहाँ पर, पाइपलाइन लिखा होगा, राइट, पाइपलाइन एजेंट एनी, मतलब कहने का मतलब कि आप कोई भी जेंकिन्स एजेंट यूज करो, मतलब डिक्लेरेटिव पाइपलाइन की शुरुआत होता है यहाँ पर। पाइपलाइन किसी भी नोड पर चल सकता है, कहने का मतलब, नोड मतलब किसी भी मशीन पे चल सकता है। एजेंट मतलब यहाँ नोड हो गया, मतलब जेंकिन्स मास्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा वर्कर इस पाइपलाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और ये कोई भी नोड पे चलने के लिए ही एजेंट एनी का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चेकआउट के बारे में, ठीक है। तो आप चेक करोगे स्टेजेस के, हर एक स्टेजेस में लिखते हैं, राइट, दिख रहे होगे आप स्टेजेस, यहाँ से स्टेजेस में ही जाओगे आप। तो अगर हम चेकआउट की बात करें तो चेकआउट करता क्या है, ये पहला स्टेज होता है जहाँ पर कोड फेच होता है। ये पहला स्टेज होता है जहाँ पर सारा कोड फेच होता है। तो हम अगर हम गिटहब से दिए गए ब्रांच से फीचर AWS बकेट ECR, जो हमारा अभी जो ब्रांच है जिसपे मेरा कोड है, ठीक है, इस ब्रांच में मेरा कोड है, वो क्या हो रहा है, इसका ब्रांच का यूज कर रहा है, और वहां पर क्या हो रहा है, ये कोड फेच करता है इस ब्रांच से। तो गिटहब से दिए गए ब्रांच जितने भी है ना, कोड को क्लोन करता है और उसको वर्क स्पेस में लाने का काम करता है ये, एक्जेक्टली। सोर्स कोड को जेंकिंस वर्क स्पेस, सुनी, सोर्स कोड जेंकिंस वर्क स्पेस में लाने का काम करता है, ठीक है, समझ में आ गया। जो ब्रांच है उसको पिक करेगा, वहां से कोड ला के देगा आपको पूरा वर्क स्पेस में। दूसरा है बिल्ड जार्स, जब देख रहे हो स्टेजेस,
ये सेल कमांड रन करता है, सच में तो सेल कमांड रन करता है। और एम्बियन क्लीन पैकेज जो यूज कर रहा है मैनेज डीएसकेप, ये मेमन प्रोजेक्ट को बिल्ड करके जार फाइल बनाता है। जो भी मेन प्रोजेक्ट है उसको बिल्ड कर रहा है, जार फाइल बनाता है। और टेस्ट केसेस को मिस स्किप करने के लिए मैनेज डीएसकेप टेस्ट का यूज किया गया है। तो कंपाइल और पैकेज करने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉकर बिल्ड एंड पुश का मतलब क्या होता है। जब भी हम लोग आप AWS ECR में जब लॉगिन करते हो, उसका कुछ लॉगिन करने के लिए हमें डॉक, जैसे कि एग्जांपल हम डॉकर फाइल यूज करते हैं, उसमें डॉकर रजिस्टर में यूजर नेम पासवर्ड होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ECR कंटेनर रजिस्ट्री ADS की बात हो रही है। यहाँ पर हमें लॉगिन पासवर्ड और लगता है यूजर नेम पासवर्ड लगता है। बेसिकली यूजर नेम किसका होता है, AWS का होता है। एक रोल, एक यूजर का यूजर नेम पासवर्ड लगता है। तो वो ECR का लगता है। जब हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं AWS का, तो क्या होता है उस रिपोजिटरी में इमेजेस चलता है, रन करता है। तो उसके लिए जो यूजर नेम हम बनाते हैं उसमें उसका दो चीज बनता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको दो चीज, जब इस AWS ECR में, जब AWS ECR क्या होता है, AWS ECR एक कंटेनर रजिस्ट्री होता है, जहां पर आपके डॉकर रन होंगे एक इंस्टेंसेस में। डॉकर रन होंगे इंस्टेंसेस में, रन होते रहता है। और उस डॉकर में क्या होगा, आपका जावा का फाइल, जावा कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उसमें क्या होना है कि आप इस फाइल को जब आप लिख रहे हो, जेंकिन्स फाइल को, तो ये सेल कमांड तभी रन करेगा जब उसको AWS ECR के लॉगिन पास करोगे, ठीक है। वेरी केयरफुली लिसन टू मी। आपको यहाँ पर क्रेडेंशियल पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गिटहब में इसको सेट किया हुआ है। कैसे सेट किया हुआ है इसकी आपकी जानकारी आपको जानना चाहे हो तो आप मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हो। ये जो भी आप, जब भी ECR, जब ECR का जो आप यूजर नेम क्रिएट करते हो, और उसके बाद जब उसका आपका सीक्रेट और आईडी, दो चीज बनता है उसको, वो चीज आप क्या करते हो, वो गिटहब में एक्सेस में सेटिंग करते हो। करने के बाद उसका सेम डिटेल वेरिएबल्स यहाँ यूज करना होता है। तो जब भी आप कोड पुश करते हो तो ये चीज को प्रोसेस लेता है और लॉगिन कर देता है, एक टेम्प लॉगिन करके कर देता है। यहाँ बाई डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो AWS करके है, राइट। AWS एक बाई डिफॉल्ट है AWS लॉगिन करने के लिए। बट ये क्या होता है, बाई डिफॉल्ट इंटरनेटली एक टोकन यूज करता है, और वो बाई डिफॉल्ट टेम्प पासवर्ड लेकर के लॉगिन कर जाता है। लेकिन पासवर्ड एग्जैक्टली वही होता है जो गिटहब एक्सेस में सेटअप होता है, ठीक है, गिटहब प्रोजेक्ट रेपो में सेव होता है। तो ये चीजें होती है। तो AWS ECR कंटेनर रजिस्ट्री में लॉगिन करता है ताकि हम डॉकर इमेज को पुश कर सकें। और डॉकर बिल्ड का मतलब डॉकर फाइल से इमेज बनाना होता है। जो कि हम इमेज बना रहे हैं, इमेज का नाम क्या होगा, स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर लैब से होगा और लेटेस्ट के नाम से होगा। मतलब जो भी लेटेस्ट नाम बनाएंगे तो उसमें सेलेक्ट, जब ECR बनाते हैं ना रजिस्ट्री, तो उसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि लेटेस्ट बनाना है, म्यूटेबल बनाना है, इम्यूटेबल बनाना है। मतलब आप उस जार को चेंज कर सकते हो क्या, या ओवरराइट करना है क्या जार। अगर नहीं करना है तो, अगर ओवरराइट करना है तो लेटेस्ट वाला डालो। तो मैंने वो लेटेस्ट सेलेक्ट किया कि आप जब भी बिल्ड करोगे तो लेटेस्ट वाला लेगा। डॉकर टैग में क्या है कि लोकल इमेजेस को हम लोग इस AWS ECR में रिपोजिटरी के नाम से टैग करना होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें बिल्ड एंड पुश में मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर हम डॉकर पुश कर रहे हैं तो मिसिंग, ये एग्जैक्टली क्या होता है कि इमेज को AWS ECR पे अपलोड करता है। एक्चुअली डॉकर पुश क्या करता है, इमेजेस को ECR पे पुश करता है, और एप्लीकेशंस को डॉकर इमेज बनाना है और AWS में स्टोर करना है तो इसका यूज करना पड़ता है इस कमांड को, डॉकर पुश को, ठीक है। अभी हम आते हैं डिप्लॉय का स्टेजेस के बारे में बात करने के लिए। ये जो आप देख रहे हो डिप्लॉय का, रन कंटेनर और इनिशिएटिव, ये सेल कमांड का क्या यूज है। जैसे अगर पुराना कंटेनर कोई चल रहा है, मान लीजिए कोई कंटेनर चल रहा है, उसे स्टॉप करना है तो आप यूज करो डॉकर स्टॉप, उस ऐप को स्टॉप करो। और अगर आपको पुल करना है, मतलब करने का मतलब रिमूव करना है उस ऐप को, तो वो रिमूव कर सकते हो। फिर अगर पुल करना है तो ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, 050376487181, राइट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ क्या है, राइट। इस चीज़ क्या है, तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि क्या है ये सब चीज़ें। आपका पब्लिक आईपी जो हो गया, जब भी आप कंटेनर रजिस्ट्री बनाते हो तो आपको बाद में दिखाऊंगा वो कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिखेगी, आईपी। और उस पे क्या, उस आईपी पे आप क्या कर रहे हो, जार को पुश कर रहे हो। पुश कर रहे हो मतलब, करने का मतलब उस जार को उस कंटेनर में पुश कर रहे हो ताकि वो चला जाए इमेजेस। और उसके बाद हम उसको रन कराने के लिए डिप्लॉय स्टेजेस का यूज करेंगे। तो ये डॉकर पुल क्या किया, उस इमेजेस को पुल करेगा जो भी लेटेस्ट पुश हो चुका है यहाँ पर बिल्ड एंड पुश में। और डिप्लॉय में क्या होता है, ये रन करेगा ये कमांड जार को रन कराने के लिए। कहाँ से, आपके डॉकर में जो जार है उसको बस रन कराओ 8080 पोर्ट पे उस जार
उस पब्लिक आईपी से जिस पर्टिकुलर पाथ तक जा रहा है, बस उसको रन कराओ, ठीक है। तो ये काम होता है आपका जेंकिंस फाइल का। आई होप इट मेक्स यू क्लियर गाइस। सो नाउ आई एम गोइंग टू द गिटहब एक्शंस। ये आपको समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको समझना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये आपको समझने की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही स्मार्टली वर्क करता है। आपको वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है AWS तक की। ये सब कोड डेवलपर ही करते हैं, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं कि डेवलपर हर चीज़ जानता है। एक कंप्लीट आर्किटेक्ट जो होते हैं, हर चीज़ों का नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें आप लोग को इसलिए कवर करना चाहता हूँ कि मैं AWS तक ही सीमित नहीं, मैं आप लोगों को एज्योर और सब कुछ बताऊंगा आने वाले नए चीज़ों के बारे में। एज्योर हो गया, फिर GCP, तो अभी सब कॉमन है, लेकिन और भी है। नेटिव क्लाउड जो भी है कस्टम बेसिस पे, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं फिलहाल आपको इसमें AWS एज के बारे में बता रहा हूँ कि गिटहब एक्शंस का चीज़ एक एक फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ जाए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको इसके बारे में जानना है कि आपको गिटहब एक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है, मतलब CI का इस्तेमाल किया जाता है, कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप कोड पुश करते हैं ना, तो ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली रन होती है और आपके प्रोजेक्ट को बिल्ड करके डॉकर इमेजेस AWS ECR में पुश करती है। तो चलिए हम इसको मतलब इतना समझें कि एक ऑटोमेटेड पाइपलाइन बनाना है, तो आपको इसका गिटहब एक्शंस का यूज करना होगा, ठीक है। और इसमें हमें गिटहब एक्सेस का जो आप वर्किंग डायरेक्टरी देख रहे हो .github/workflows, तो उसके आप बाइक आपको CIML पे सोर्स फोल्डर के अंदर में रखना होगा, सोर्स फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो लाइन में समझते हैं। नेम, यहाँ पर नेम आप जो देख रहे हो CI पाइपलाइन, ये वर्कफ्लो का नाम है। वर्कफ्लो का नाम डिपेंड करता है कि आप किस नाम से बना रहे हो। ये गिटहब एक्शन UI में या पाइपलाइन CI पाइपलाइन के नाम से दिखता है, दिखेगा। जैसे ही आप बनाओगे CI पाइपलाइन, तो गिटहब एक्शन में UI में जब दिखोगे तो ये पाइपलाइन CI नाम से दिखेगा आपको। फिर क्या है कि ऑन पुश पे ये बताता है कि पाइपलाइन कब ट्रिगर होगी, कहाँ से ट्रिगर होगी, ठीक है। यहाँ कंडीशन है, जब भी आप फीचर AWS 3 बकेट ECR पर ब्रांच पर पुश होगा कोई कोड, जब भी कोई कोड इस ब्रांच पर पुश होगा, तो इस ब्रांच पर पुश होने वाले सारे कोड्स पाइपलाइन पर एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम कोड पे आते हैं कि अगर हम जॉब्स जो रन कर रहे हैं, जॉब बिल्ड्स रन Ubuntu लेटेस्ट गिटहब रनर इन्वायरमेंट, ये जॉब का नाम का बिल्ड है, एग्जैक्टली, ओके। जॉब का नाम का बिल्ड है। ये गिटहब को रनर का वर्चुअल मशीन Ubuntu OS पे चलेगा, Ubuntu पे चलता है, चलेगा जो लिखा हुआ है। और OS मतलब पाइपलाइन Ubuntu इन्वायरमेंट एग्जीक्यूट होगी। चेकआउट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टेप्स चेकआउट कोड। मतलब इस चेकआउट से इसका मतलब क्या होगा कि ये गिटहब का ऑफिशियल एक्शन है, जो आपको रेपो का कोड रनर मशीन पर क्लोन करता है। इसका यूज गिटहब का ऑफिशियल एक्शन होता है, जो आपके रेपो का कोड जो होता है रनर की मशीन पर क्लोन करता है। ये सोर्स कोड को पाइपलाइन में लाना होता है, एग्जैक्टली। और ये मैंडेटरी है, आपको इसको यूज करना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेटअप JDK करते हैं, जहाँ पर आपको जावा वर्जन चाहिए, राइट। विद जावा वर्जन 17 और डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं हम लोग। तो ये रनर पे जावा पे इंस्टॉल करना होता है, जिसमें जावा 17 इंस्टॉल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन टेमोरिन यूज करेंगे। और बिल्ड विथ मेवन, आप जो देख रहे हो बिल्ड विथ मेवन, ये सेल कमांड एग्जीक्यूट करना होता है, जहाँ पर एम्बियन क्लीन पैकेज यूज कर रहे हो, जहाँ मेवन प्रोजेक्ट को बिल्ड करके जार फाइल बनाना होता है। पर्पस ही इसका होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कंपाइल और पैकेज करना होता है, ठीक है। ये होता। अब आपको इंटरेस्टिंग कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल के बारे में बताता हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आप समझ गए, आई होप इट्स मेक क्लियर। अभी जो नेम है कॉन्फ़िग AWS क्रेडेंशियल का, वो क्या होता है, मतलब जब आप देखोगे, जैसे AWS एक्सेस में जब आते हो ना, तो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कुछ क्रेडेंशियल, जो मैंने आपको बताया था कि AWS सेल है वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। उसके लिए क्रेडेंशियल गिटहब सीक्रेट में से हम लोग स्टोर करते हैं, सिक्योर स्टोरेज में स्टोर करते हैं। जैसे क्रेडेंशियल एक्सेस, सीक्रेट आईडी एंड की, तो वहाँ स्टोर करते हैं। तो AWS सर्विस में जैसे ही ECR एक्सेस करने के लिए ऑथेंटिकेशन सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें यूजर से AWS एक्सेस कॉन्फ़िगर AWS क्रेडेंशियल V4 का ही बाय डिफॉल्ट यूज करना होगा आपको, जहां पर एक्सेस की आईडी ऑलरेडी गिटहब में आपको स्टोर की हुई है AWS एक्सेस की आईडी के हिसाब से, और इसके एक्सेस की भी स्टोर की हुई है। रीजन भी यूज किया हुआ है US रीजन, ठीक है। और ये सब चीजें स्टोर करने के से क्या होता है कि EC2 में आप लॉग इन कर जाते हो और इमेजेस को पुश कर सकते हो, ठीक है।
जस्ट जैसे ही आप लॉगिन कर जाओगे तो आपका नेम लॉगिन टू इमेज लिखाएगा बिल्ड में पाइपलाइन में कि लॉगिन टू इमेज एंड ईसीआर, और लॉगिन ईसीआर का यूज लॉगिन होता है। तो इस स्टेप का आउटपुट अगर यूज किया जा सकता है कि आप डॉकर को एडब्ल्यूएस ईसीआर में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इमेजेस को यहाँ पे आप पुश करने के लिए, ठीक है, बिल्ड करने के लिए, टैग करके पुश करने के लिए डॉकर इमेजेस में, तो इसका यूज करते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट का यूज करते हैं, env का एक एनवायरमेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसमें क्या करते हैं ईसीआर के रजिस्टर, ईसीआर एडब्ल्यूएस के ईसीआर रजिस्टर में ये वाला जो लॉगिन स्टेप होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर रिपोजिटरी का एग्जैक्टली नाम, जिस नाम से रिपोजिटरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर मिस करोगे तो यहाँ पर गलती करोगे आप, ठीक है, तो वो चीज़ नाम आपको यहाँ यूज करना होगा। और ईसीआर रिपोजिटरी रेपो का नाम डालने के बाद इमेज का टैग डालना होगा, इमेज का लेटेस्ट इमेज क्या है। और फिर आप जो देख रहे हो स्टेप्स टू बिल्ड टैग राइट, इसमें आप यूज करोगे हम डॉकर बिल्ड पोस्ट का, ये सब चीज यूज करोगे कि आपको इमेजेस को एडब्ल्यूएस डॉकर फाइल से इमेज बनाना है तो डॉकर बिल्ड यूज करोगे, डॉकर पुश यूज में करोगे कि इमेजेस को एडब्ल्यूएस ईसीआर में अपलोड करना है तो एप्लीकेशन का डॉकर इमेज बनाओ और ईसीआर में स्टोर करो, ठीक है। तो ये गिटहब एक्सेस फ्लो का काम है कि कोड को पुश कर सको ऑटोमेटिकली पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। अभी मैं एक पीआर बनाऊंगा, मेरा कोड ऑलरेडी उस पर है, आपने देखा, वहाँ एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगा, ईसीआर में बनाया हुआ है। अभी कोई पाइपलाइन आपको दिखेगा, ये सब कोड ऑटोमेटिकली है, लिखा हुआ है सारा कोड इसमें, हाँ। अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं जैसे क्रिएट करूंगा तो एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट होगा, आप ये देखो। हाँ, एक्सेस, गिटहब एक्सेस, पाइपलाइन गिटहब एक्सेस टू डिप्लॉय jar to EC2 instance, EC2 instances, ठीक है। इसको पुल करते हैं, हाँ। तो ये एक देखिए आपको एक पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, चेक सर्टन पास्ट, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। उसको मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, एक सेकेंड, अभी तो मैं मर्ज नहीं करूँगा, चेक्स, हाँ चेक्स पास करके देखता हूँ क्या है इसका, बिल्ड हो चुका है शायद, मैं रीरन करता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही आप रीरन करोगे तो बिल्ड रन करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो बिल्ड देख रहे हो सेक्शंस, थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, बट इट शुड बी, यू विल सी द बिल्ड ओवर हियर, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। तो ये देखो आपको क्या क्या स्टेप दे रहा है ये बिल्ड होने का, सेटअप पर भी जाओ, ये सेटअप हुआ जॉब, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो भी है एक्शन सेट हुआ, मैं इसको भी शो नहीं करूँगा आपको, बहुत कुछ क्रेडेंशियल इवन बिल्ड हुआ इसका, ठीक है। बिल्ड विथ में AWS क्रेडेंशियल जो है वो सेटिंग हो रहा है, ये जेंकिंस का फाइल का है, ठीक है। और जेंकिंस का और गिटहब एक्शंस का सब कि सब जितना पहला एग्जीक्यूट होगा गिटहब एक्शंस एग्जीक्यूट होगा, और वो सब जेंकिंस डॉकर से सब डिटेल्स ले लेगा, सब सारा स्टेप्स। तो आप ये देख रहे हो सारा एग्जीक्यूट हो रहा है यहाँ पर, पोस्ट लॉगिन टू अमेजन ईसीआर, जब लॉगिन हुआ ईसीआर पे, उसके बाद ये पोस्ट कॉन्फ़िगर एडब्ल्यूएस क्रेडेंशियल के बाद क्या हुआ, क्लीनअप हुआ, पोस्ट सेटअप जेडीके, जब जेडीके इंस्टॉल हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद चेकआउट कोड होने के बाद क्या हुआ, वो सारा चीज़ इसमें बता रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट जॉब ये हो चुका है काम। अब ये आपको इमेजेस दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ईसीआर में। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, मैं स्टेप्स दिखाता हूँ, पहले मैं दिखा रहा हूँ कि रन कहाँ कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो एक मैंने बनाया हुआ है EC2 इंस्टेंसेस में, आपको पहले वीडियो में बताया था EC2 इंस्टेंस के बारे में, आप पहले वीडियो देख लो, उसमें वहां पर मेरा इमेजेस अभी पुश किया है, ठीक है। अभी देखिएगा डेट के हिसाब से भी पुश हुआ है क्या, तो इस पे जाते हैं हम, ठीक है। उसके लिए जाना पड़ेगा ECR में,
आपको दिखेगा मैंने ECR में बनाया हुआ था कंटेनर रजिस्ट्री, जिसके बारे में डॉकर की बात कर रहा है। ECR कंटेनर रजिस्ट्री में रिपोजिटरी में चेक करोगे, स्प्रिंग बूट आर्किटेक्चर लैब इस नाम से रेपो बनाया था, राइट। इसके अंदर आप चेक करोगे तो अभी टाइम जो हो रहा है, अभी आप देखोगे टाइम कितना हो रहा है। हाँ, ये 0:21, और मतलब 12:21। तो अभी आप देख रहे हो वही हो रहा है, ठीक है। जब मेरा मशीन में देख रहे होगे अभी टाइम, तो उसी टाइम पे अभी जार आया है, ठीक है, जिसकी साइज है 241.39 MB की साइज है। वो इमेजेस यहाँ आ चुकी है, और यही जार डॉकर के कंटेनर में दिखेगा। अब उसको देखने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले EC2 इंस्टेंसेस पे आएंगे और वहां चेक करेंगे हमारा डॉकर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, वन सेकेंड, स्लो हो गया, लेट मी कनेक्ट अगेन। मैं स्टेप को करके दिखा देता हूँ। EC2 में जाना है उसके लिए। okay, और US रीजन में मेरा ऑलरेडी इंस्टेंसेस रनिंग हो रहा है। डैशबोर्ड पे जाऊंगा। और इस एप्लीकेशंस में जो कि ये जो इंस्टेंसेस जो रन कर रहा है, उसको कनेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। ये कनेक्ट करने के लिए वेब ब्राउज़र ये यूज करूंगा। आप ये देख रहे हो, ये वेब सर्वर ओपन हो गया मतलब मेरा। और एक आईपी जो बता रहा था आपको, आईपी, ये आईपी से मैं कनेक्ट करूंगा। तो लेकिन ये एप्लीकेशन में रन हो रहा है, लेकिन लेट मी सी हाउ इट इज। ओके, सो सबसे पहले सब क्लियर करो, ठीक है। और सबसे पहले चेक करते हैं इस कमांड से कि कोई डॉकर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वाओ, सो दिस इज द डॉकर विच इज रनिंग ऑन। ओके, सो ये डॉकर पे आपको रन कर रहा है, करेक्ट। और अभी अगर हम चाहें तो इसका हम डॉकर का कमांड चेक करेंगे कौन सा इमेजेस रन कर रहा है। सो दिस इमेजेस इज रनिंग ऑन नाउ, ठीक है। ये 12 घंटे पहले हुआ। अगर मैं चाहूँ तो उसको लेटेस्ट जार जार है वो उसको ओवरराइड कर सकता हूँ, उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी। ये पहले एग्जिस्टिंग रन कर रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ कि आपको कंटेनर रजिस्ट्री कैसे बनाते हैं, और जो मैंने पहले बना के रखा था, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे होता है। मैं हर चीज़ें तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन एक सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। कुछ कुछ ज़्यादा डाइट, अगर आपको डिटेल में जानना है तो थोड़ा मेहनत तो करना होगा। तो मैं आपको डेफिनेटली, आप मेरे से अप्रोच करो, मैं आपको बताऊंगा हाँ हर चीज़ों को डिटेल में, क्योंकि इसमें टाइम एफर्ट्स पूरा लगता है। और आपको तो पता है पैक उसमें कितने एफर्ट रखने का क्या क्या कॉस्ट होता है। तो मैं आपको हर चीज़ें इजली तरीके से तो नहीं बता सकता, बट हाँ यू कैन कनेक्ट विथ मी, आई कैन शो यू लाइक हेल्प यू। आई विल सी हाउ आप कितना मेहनत करना चाहते हो। हर चीज़ों को आप यूट्यूब के वीडियो के थ्रू 1 आवर में सब कंप्लीट करना चाहते हो तो इज ऑल्सो फाइन, बट मैं ऐसे आपको आपको मेहनत करने देना चाहता हूँ, करो मेहनत, ठीक है। लेकिन लेट मी स्टार्ट, आई विल गिव यू सम हिंट। सो सबसे पहले क्या करता है, हम जब से ही गिटहब कोड में पुश करने से पहले हमें एक ECR रिपोजिटरी बनाना होता है। उसके लिए क्या करना होगा, हमें ECR पे जाना होगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, मतलब आप कोड लिख लो लेकिन पुश मत करो कोड को, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको ECR क्रिएट करना होता है। तो उसके लिए क्या करता है, ये ECR क्या होता है, एक कंटेनर रजिस्ट्री होता है जहाँ पर आपका डॉकर रहेगा, ठीक है। मैंने दो बनाया हुआ है, आपको एक बना कर दिखाता हूँ इसमें। ये जैसे ही आप इसमें यूज करोगे तो यहाँ पर होता है कि उसके रिपोजिटरी का नाम क्या होगा, राइट। तो आप यहाँ पर आप इसका नाम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि आ, जैसे कि हम डाल देते हैं स्प्रिंग बुट आर्किटेक्चर V1 काइंड ऑफ, ठीक है। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है कि आप उस पे टैग की म्यूटेबिलिटी चेंज नहीं होनी है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। म्यूटेबल चेंज कर सकते हो, टैग कैन बी ओवर रिटन, वो जो मैंने किया था, वो ओवर मैंने इम्यूटेबल रखा था कि ओवर रिटन ना हो, तो वो जार रिप्लेस नहीं हुआ। तो आप चाहते हो कि वो वर्जन, जो जार का जो वर्जन है, वो वर्जन आप फिर से डालोगे तो ओवरराइट कर जाए उसको, जो कुछ कोड फाइल चेंजेस किया। तो वर्जन हम वही रख रहे हैं, 0.0.1।
हम अगर कोड पे होता है ना कि आप वर्जन चेंज करते हो वर्जन के हिसाब से प्रोडक्शन में, तो आप इम्यूटेबल आप क्या रखना चाहिए, इम्यूटेबल रखना चाहिए, इम्यूटेबल रखना चाहिए, राइट। तो इम्यूटेबल रखते हैं कि वो प्रीवियस जार हुआ है रिप्लेस ना हो, वो प्रीवियस रहे लेकिन न्यू वर्जन आ पाए। तो इसको लिए इम्यूटेबल बोलते हैं, उसको वर्जन अपग्रेडेशन बोलते हैं जार का। तो बेसिकली प्रोडक्शन में इम्यूटेबल ही रखना पड़ता है, बेटर है, ठीक है। हम अभी म्यूटेबल रख रहे हैं उसको, क्योंकि मुझे ऐसा कोई जरूरत नहीं है, उतनी मेहनत नहीं करनी है अभी फिलहाल आप लोग के लिए। तो यहाँ पर अभी अभी इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो बाई डिफॉल्ट 8 टू 56। अब देख लो क्या है ये, मुझे पता है इसमें इसके बारे में एडवांस एप्लीकेशन की यूज करते हैं इंक्रिप्शन। हम AES-256 सिंपल इंक्रिप्शन यूज कर रहे हो। देखिए अभी आपका ये बन चुका है, राइट। ये आपका बन चुका है। अभी ये बन जाने के बाद भी इसमें क्या है एक्चुअली, हमें इसका आईपी देखना होगा। अब जिससे मैं आपको आईपी बता रहा था, राइट, जो जेंकिंस फाइल में था, करेक्ट। तो लेट मी शो यू। ये जो आप जो देख रहे हो रिपोजिटरी यूआरआई, करेक्ट, रिपोजिटरी यूआरआई, ये सेम चीज आपको कहाँ यूज करनी है वो बताता हूँ आपको। जेंकिंस में जाइए, जेंकिंस में ये जो यूज कर रहे हो, राइट, ठीक है, यहाँ यूज करना है। DKI ये सब चीज़ें यहाँ यूज़ करनी है जेंकिंस फाइल्स में, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें आपको कमांड का बता दिया था मैंने कि टैगिंग करते हो जो भी आप जार फाइल बनाओगे वो कहाँ जाके स्टोर होगी, आपकी इस पार्टिकुलर आईपी के पाथ पे उसके नाम से जो जार आएगा वहाँ जाके स्टोर होगा, करेक्ट। तो ये इधर आके स्टोर होगा, तो ये चीज़ें कॉपी करनी पड़ती है रिपोजिटरी की यूआरएल। फिर बाद में क्या करना पड़ता है आपको, फिर ये रिपोजिटरी बन जाने के बाद क्या है ना कि उसके आपको IAM यूजर पे जाना होगा जहां पर आपको यूजर ऐड करना होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फिर से समझो, IAM यूजर पे जाना होगा। उसके लिए आप जाओगे ब्राउजर पे, उस पे IAM उसी पे जाओ, एम AWS कंसोल पे, और IAM यूजर पे जाओ। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, आई विल शो यू कैसा यूज़र बनाया है, लेकिन अगर चाहो तो मैं क्रिएट करके देता हूँ। मैंने एक बनाया गिटहब एक्शन यूज़र ECR। इस पे मैंने क्या किया है, इसमें पॉलिसी लगाई हुई ये अमेजन EC2 कंटेनर रजिस्ट्री फुल एक्सेस, अमेजन EKS क्लस्टर पॉलिसी और कस्टम इनलाइन पॉलिसी बनाई हुई है। तो ये अब तीनों को आपको ये बनाना होगा। मैंने ये खुद से बनाया है, ये कस्टम इनलाइन पॉलिसी, जो कि तीनों के लिए अप्लीकेबल है। ये करने का काम क्या होता है, फुल एक्सेस देता है आपके रजिस्ट्री के लिए, कंटेनर की फुल रजिस्ट्री देता है मैनेज करने के लिए कंटेनर को। और ये EKS क्या है, ये क्यूबरनेटिस के लिए। अब क्यूबरनेटिस क्या है वो बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन EKS क्यूबरनेटिस थोड़े से समझिए कि आपको एक क्लस्टर है जहाँ पर मल्टीपल नोड्स होते हैं, और हर नोड्स में क्या होता है ना, आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय रहता है। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है, सब चीज़ें वो मैनेज करता है मल्टीपल, जैसे ह्यूज वॉल्यूम्स का कॉल आया तो मल्टीपल नोड्स दे दिया आपको, मल्टीपल सिस्टम दे दिया। और उसको मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस बोलता है कि चलो 4 नोड है, हम 4 इंस्टेंस दिए आपको, 4 एप्लीकेशन रन करो। अगर एक क्रैश होता है तो उसको भी कैसे मैनेज करना था इसमें सब दिखता है, आप मैनेज कर सकते हो, हेल्थ मॉनिटर कर सकते हो। ये सब की पॉलिसी लगाने के लिए आपको यूज करना होगा कि एक यूजर रूल बनाना पड़ता है, और उस यूजर की पॉलिसी को आप बनाने के बाद उसको यूज करते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल रोल आपको बनाना पड़ता है, तो मैंने ऑलरेडी बनाया है। चलिए मैं सिंपल आपको बना कर दिखाता हूँ रोल कैसे बनाते हैं। एग्जांपल टेस्ट रोल बनाता हूँ, ठीक है। अब दूसरा है कि प्रोवाइड यूजर एक्सेस मैनेजमेंट राइट, यहाँ पर बोल रहे हैं क्या, प्रोवाइड एक्सेस मैनेजमेंट रूल ऐड यूजर के बाद मतलब कि बनाने के बाद आपको पूछेगा कि कंसोल एक्सेस चाहिए क्या, तो अभी मत यूज करो आप, बस अनचेक ही रखो इसको, और बस एक पॉलिसी इसको यूज कर लो, अमेजन EC2 कंटेनर रजिस्ट्री फुल एक्सेस चाहिए इसको, ठीक है। तो इस पे जाना, यूजर टू ग्रुप रहने दो, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर। शायद हाँ, अटैच पॉलिसी कर सकते हो, अटैच पॉलिसी ही करना है। और यहाँ पर आपको जो बताया अटैच EC2 कंटेनर फुल रजिस्ट्री एक्सेस दे दो। इसमें क्या होता है देखोगे आप, क्लाउड ट्रेल, मतलब आप लॉग्स को चेक कर सकते हो क्लाउड ट्रेल का यूज करके। और सर्विस लिंक्ड रोल, जो भी सर्विस लिंक्ड रोल है ECM के आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट क्लिक किया, टेस्ट रोल, टैक्स की कोई जरूरत नहीं है इसमें, बस क्रिएट रोल, ठीक है। ये बन जाने के बाद, टेस्ट रोल बन जाने के बाद यूजर लिस्ट में जाओ और उसको फिर से इसमें आप इस पे जाओ और इसके सिक्योरिटी ऑप्शन में जाओ, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में। यहाँ आपको क्रिएट करने के लिए आएगा ऑप्शंस, क्रिएट एक्सेस की। तो यही एक्सेस की यहाँ क्रिएट करते हो ना कमांड CLI का यूज करते हुए, तो आपको बन जाता है। बता रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। अब इसका मैं बोल रहा हूँ टेस्ट की, टेस्ट यूजर की,
आप समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया यही जो की है ना, आपको गिटहब में डालना होता है, एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, डाउनलोड करोगे वहाँ, गिटहब एक्सेस में सेट करोगे। कहाँ सेट करते हो वो आपको सेटिंग में मिल जाएगा। हर चीज़ बता ही दूंगा तो क्या होगा फिर। ये सेटिंग में जाओगे, यहाँ से एक्शंस में जाओगे इधर साइड में, सेटिंग्स में एक्शंस में जाओगे, जनरल में जाओगे तो आपको दिखेगा इधर साइड में। इधर गया, 1 सेकेंड। एक्शंस में जाओगे, रेडी सी सेक्शंस, ऑप्शंस में सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी डिप्लॉय की, हाँ सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स में जाना पड़ता है, फिर यहाँ एक्सेस में जाना पड़ता है। सीक्रेट्स एंड वेरिएबल में यहाँ आपको सेट करना पड़ता है एक्सेस की आईडी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ सेट करनी, आप देख रहे होगे यहाँ पर राइट, तो ये सब चीज़ें ऐड करनी होती है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपको एक्सेस की बना देते हो, सेट कर देते हो, तो फिर आप क्या करते हो, एक यूज़र बन जाता है आपका, करेक्ट। आप सीक्रेट्स डाल दो गिटहब में, और वही चीज़ मैंने यहाँ बताया था कि जेंकिन्स फाइल में आप जब जाते हो, जेंकिन्स फाइल में तो आपको दिखाया था इस ईयर में। तो ये किधर गया इसका फाइल चेंजेस में। तो ये अब देखो एक्सेस की यहाँ यूज़ किया हुआ है राइट, जेंकिन्स यूज़ किया हुआ, फ्लो में भी यूज़ किया हुआ है। तो ये बोलता है कि आप जब भी कॉन्फ़िगर करते हो और इमेजेस को पुश करना है, तो पहले आपको उस रोल का एक्सेस दो जिसके पास एक्सेस है ईसीआर का, और वहां से लॉगिन करो। लॉगिन करने के मतलब लॉगिन करो यहाँ, लॉगिन करने के बाद बिल्ड करो और डिप्लॉय करो, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है इन द बैकग्राउंड में, और एप्लीकेशंस रन कर रहा है। तो अभी हम एग्जांपल के तौर पे वो आईपी, हम इस इंस्टेंस पे जाते हैं, चेक करते हैं कि मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें जाते हैं EC2 पे, EC2 पे नहीं, ECR पे, शायद ECR, सर कंटेनर रजिस्ट्री, हाँ। EC2 पे, EC2 पे, ECR, हाँ ECR पे। हम्म, और जैसे यहाँ पे जाते हैं और यहाँ चेक करेंगे, मेरा जो ऑलरेडी पिछले वाला जार जो रन कर रहा है, ये वाला यहाँ, इस पे क्लिक करते हैं। शेयर पे नहीं, ये शेयर पे जाएगा तो EC2 पे जाएगा राइट, EC2 पे जाएगा, और EC2 पे जाने के बाद एक IP बनेगा उसका। डैशबोर्ड पे जाऊंगा, इंटेलिजेंस पे जाऊंगा, और उसका आईपी होगा। ठीक है, तो ये आईपी इस तरह से यूज करना होगा, और मुझे आईपी है ये। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है क्या इस आईपी पे। ठीक है, ये मेरा रन कर रहा है, तो ये आईपी आपको मिल जाएगा। अब अभी बोलो ये आईपी है कहाँ, तो आप देखिए जब भी आप बनाते हो इसी इंस्टेंसेस जो भी है, तो ये आपको यहाँ वहाँ मिलता है, उस पर्टिकुलर इन पॉइंट पे मिलेगा आपको। तो उसके लिए जानने के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, कहाँ पर ये आईपी यूज़ करेंगे और ये सब चीज़ें। तो ऐसे ही एप्लीकेशंस आप क्या करते हो, इसी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने डॉकर जो भी है, डॉकर के कंटेनर रजिस्ट्री में। आप डॉकर को मतलब जो भी है, आप इसी टू इंस्टेंसेस में आप पुश कर सकते हो और एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो। ठीक है, गिटहब एक्शंस के थ्रू। सो अब तक के लिए इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए, ये चीज़ें। और अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें आप लोगों को, तो मुझे अब कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो। सेकेंड थिंग, एक क्यूबरनेटिस के बारे में, क्यूबरनेटिस के में भी कैसे करते हैं, थोड़ा सा डेमो आपको चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ, और लेकिन इसका क्वाइट फिर डिफिकल्ट ना हो, अभी आपको कैसे बताऊँ। ठीक है, उसके लिए एक सिंपल तरीका बताता हूँ। आपने ECR तो कर दिया राइट, अब उसके लिए क्या करता है कि आपको EKS यूज़ करना होगा। तो कंटेनर रजिस्ट्री आप देख लिए, और जैसे ही आप कंटेनर में आपका एप्लीकेशन रन कर रहा है, तो EKS यूज़ करो। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाया है 2 क्लस्टर, एक क्लस्टर बनाया है,
जिसमें चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। क्लस्टर में जहाँ पर आपको क्लस्टर का नाम जो भी ये बनाया हुआ ऑलरेडी, रोल पिक कर लो। मैंने रोल बनाया हुआ है EKS क्लस्टर रोल, जिसको 3 रोल असाइन किया हुआ है। कौन कौन सा रोल असाइन किया हुआ वो देख लो आप। इसमें आपका EKS का अमेजन EKS फुल एक्सेस दिया हुआ है। देखो, अमेजन EKS ब्लॉक स्टोरेज पॉलिसी, अमेजन EKS क्लस्टर पॉलिसी, EKS कंप्यूट पॉलिसी, EKS लोड बैलेंसिंग पॉलिसी, अमेजन EKS नेटवर्क पॉलिसी, ये सब चीज़ें मैंने दी हुई है। ये कैसे क्या करता है, नेटवर्क के सारे ट्रैफिकिंग को मैनेजमेंट करने के लिए EKS नेटवर्क पॉलिसी यूज़ किया गया। लोड बैलेंसर कॉलिंग करने के लिए आपका इस पॉलिसी का यूज़ किया गया है। कंपटीशन मतलब कितने नोड ऐड करने हैं, घटाने बढ़ाने हैं, कंप्यूट पॉलिसी का यूज़ किया गया है। और भी है भाई, मैं इसके बारे में नहीं जानता, इतना भी ज्ञानी नहीं हूँ। जितना है मैं बता रहा हूँ, आप लोग देख लो, खुद रिसर्च करो इस पे। ये रोज ये क्लस्टर रूल बना दिया गया है। और आप मैंने एक IAM रोल बनाया हुआ है। इसमें मैंने स्प्रिंग बूट EKS नोड बनाया हुआ है इस रोल में। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, क्या 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 रोल है इसमें। इस रोल में मतलब एक नोड के वर्कर नोड के दो चीज होती है। आपको आपको एक वर्कर नोड होता है, दूसरा एक होता है इसका पेरेंट होता है, मतलब उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, हेड ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन। तो वो ब्रेन ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग रोल्स में। ये है आपका वर्कर नोड रोल्स, वो जो बनाना पड़ता है। BPC आपका यूज करोगे डिफॉल्ट, या मैंने खुद का बनाया हुआ प्राइवेट टाइप का जो आर्किटेक्चर लैब BPC क्रिएट BPC भी बनता है कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ। डुप्लीकेट्स में जाओ यार, डुप्लीकेट्स में। तो BPC क्या होता है ना, एक नेटवर्किंग के लिए पूरा यूज किया जाता है BPC। बीपीसी आप यहाँ जाओगे, BPC और एक क्लाउड रिसोर्सेस है, जहाँ पर आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाता है, जहाँ पर आपका रिक्वेस्ट आएगा सब कुछ, वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो BPC पे क्रिएट करोगे तो यहाँ पर क्रिएट BPC का ऑप्शन आता है वर्चुअल प्राइवेट कनेक्शंस करने के लिए। इसमें आप P4 यूज कर सकते हो, सबनेटिंग यूज कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क यूज कर सकते हो, कॉस्टिंग के हिसाब से आपको यूज कर सकते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। बहुत बहुत सारे कंसेप्ट है इसमें। तो स्टेप बाय स्टेप जाओ इसमें। इसमें एग्जाम्पल, ब्लॉक इज रिक्वायर्ड, मतलब इसमें मेरा ऑलरेडी है। ब्लॉक इज रिक्वायर्ड 26 लेगा इसका। ओके, IPv6 ऑन बाई मी, नो ब्लॉक करना पड़ेगा, नन डालो। हाँ, फिर अभी कर सकते हो। तो ऐसे बनाना पड़ता है। इसमें 10.0.26 डालना पड़ेगा। मास्किंग मैंने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, बाकी यूज़ करूँगा पैसे लगेंगे। तो ये सब VPC में डाला हुआ है बना करके, ठीक है। मैं ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ, टैप लाइन। ठीक है, तो इसमें दोनों प्राइवेट यूज़ करना पड़ता है। अब देखो दोनों प्राइवेट है। ये कनेक्शन बन जाने के बाद आप यूज़ करते हो, मतलब ऐसा है। ठीक है, तो इससे क्लस्टर बना देते हो, और कैसा दिखता है क्लस्टर वो दिखाता हूँ आपको। नो, रीजन स्विच नहीं करना भाई, ऑलरेडी EC2 में क्लस्टर। ये क्लस्टर से बनाया है एक कैश का। आप देखोगे हेल्थ मॉनिटरिंग करने का काम होता है। अपग्रेड इनसाइट 5 अपग्रेड इनसाइट है इसमें। कैपेबिलिटी इशू है, हेल्थ है क्लस्टर का, जिसमें आप देखोगे कि सर्वर का इन पॉइंट्स है, ओपन है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखोगे तो समझोगे इसके बारे में। कंप्यूटेशन का नोट्स के एडिशन का नोट ग्रुप बनाने के लिए यूज होता है। देखो नोट ग्रुप मैंने बनाया हुआ है इसमें। तो नोट ग्रुप फेल हुआ, मुझे चेक करना होगा उसके बारे में। ये सब चीज़ें हैं क्यूबरनेटिस के बारे में, अभी भी रिसर्च कर रहा हूँ मैं, और आई विल लेट यू नो। अब तक के लिए आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे एप्लीकेशन रन कर रहा है इस क्लस्टर पे। और इसका आप जो देख रहे हो IP, आप उसी से कनेक्ट कर रहे हो। तो उस पाइप का सारा डिटेल मैंने आपको समझा दिया है। और इमेजेस भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। जैसे कहाँ से दिखेगा, ECR पे जाना, जो बताया आपको, कंटेनर का रजिस्ट्री का इमेजेस। करेक्ट। तो ये जो आप जब भी पुश करोगे अपने रेपो से, तो यहाँ आकर स्टोर होगा इमेजेस, ठीक है। अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। लोगों को कुछ होगा डाउट तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।